ओम शांति। आज के बाबार 2-10-2020 मुरली। आज के बाबा विशेष मुरलीते बोलছেন যে জ্ঞান মার্গে তোমাদেরকে কি একটা কথা ভাবা উচিত না আর বলা উচিত না। তো বাবা বলছেন যে অনেক বাচ্চারা ড্রামার উপরে আটকে যায়, যে ড্রামাতে যদি থাকবে তাহলে ড্রামা ঠিকই আমাকে পুরুষার্থ করে নেবে। তো যদি ড্রামাতে আমার উঁচু পদ থাকে তাহলে আমি ঠিকই পুরুষার্থ করে নেব। তো বাবা বলছেন যে ড্রামার উপরে তোমার পুরুষার্থকে ছেড়ো না, আগে পুরুষার্থ করো। পুরুষার্থ দ্বারাই প্রারব্ধ তৈরি হয়। বাকি যদি তুমি পুরুষার্থ করেও যদি সফল না হচ্ছ তখন বলো ড্রামা, কিন্তু আগে পুরুষার্থ তোমাকে করতেই হবে। তারপরে বাবা বলছেন যে আজকালকার সাধু সন্ন্যাসীরা বা কেউ যদি বড় বড় কোনো বেদ শাস্ত্র পড়ে বিদ্বান হয়ে গেল তো তারা নিজেকে শ্রী শ্রী 108 জগৎগুরু টাইটেল দিয়ে দিচ্ছে। তো বাবা বলছেন যে তাদেরকে গিয়ে বোঝাও যে ভগবানের টাইটেল তোমরা নিজে কি করে নিচ্ছ। শ্রী শ্রী 108 জগৎগুরু তো শিব বাবা, মানুষ হতেই পারে না। তো 108 বৈজন্তী মালা মানে 108 আত্মাকে যে যারা একদম সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে পাবন হয়ে বৈজন্তী মালার দানা হয়েছে তাদের মালিক তো শিব বাবা। তো 108 জগৎগুরু শিব বাবা, তো এই টাইটেলটা কোনো মনুষ্য আত্মা নিতে পারে না। তারপরে বাবা বলছেন যে কৃষ্ণকে দেখানো হয়েছে যে সমুদ্রের মাঝখানে অসৎ পাতার উপরে অঙ্গুঠা চুষতে চুষতে এসেছে। তো বাবা বলছেন এটা কি কখনো হয় যে সমুদ্রের মাঝখানে একটা পাতার উপরে কৃষ্ণ আসবে? বাস্তবে জ্ঞান সাগর হচ্ছেন বাবা, আর জ্ঞান সাগর বাবা সর্বপ্রথম রচনা হচ্ছেন কৃষ্ণ। তো কৃষ্ণই হচ্ছেন সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার। তো এটাকে তারা এইভাবে বুঝিয়েছে। তারপরে আজকে বাবা বিশেষ বলেছেন যে তোমরা ড্রামার উপরে থেকো না, ড্রামা পুরুষার্থ করাবে এটা কখনো বলো না। ড্রামা আগে তোমরা নিজেকে ভালো করে তৈরি করো, তারপরে তোমাদের যদি যে প্রারব্ধটা সেট হলো সেটাই হবে ড্রামা, কিন্তু আগে নিজে ড্রামা পরে পুরুষার্থ এটা বলো না। আসুন এবার আমরা বাবার পুরো মুরলি ভালো করে বিস্তারিতভাবে শুনব। মিঠে बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। বাবা বলছেন যে এটা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, কল্যাণকারী যুগ, এটাতেই পুরো বিশ্ব পরিবর্তন হচ্ছে আর আমরা এখন কনিষ্ঠ থেকে উত্তম পুরুষ হচ্ছি। আজকের প্রশ্ন হচ্ছে इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। বলছেন যে যদি তুমি জ্ঞান মার্গে এমন কি একটা কথা যদি ভাবো বা বলো তাহলে কখনো তোমার উন্নতি হতে পারবে না। তো বাবা উত্তরে বলছেন ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। বাবা বলছেন যে ড্রামাতে হলে আমি পুরুষার্থ করব, ড্রামা করিয়ে নেবে তাহলে করে নেব। তো যারা এরকম ভাববে বা যারা এরকম বলবে তাদের উন্নতি কখনো হতে পারবে না। यह कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। বলছে তোমরা এখন জানছো যে এখন আমরা যে পুরুষার্থ করছি এটাও ড্রামাতে ফিক্স আছে। पुरुषार्थ करना ही है। गीत है यह कहानी है दिए और तूफान की। বাবা বলছেন যে ড্রামাতে কি আছে? যুদ্ধ। সবসময় আমাদের এখন যুদ্ধ। তো আমরা হচ্ছি আত্মা প্রদীপ আর মায়া বিভিন্ন রকম তুফান আনছে। তো এই তুফানের সঙ্গে প্রদীপের যুদ্ধ সবসময় লেগেই থাকছে। ওম শান্তি। यह है कलयुगी मनुष्यों के गीत। বাবা বলছে বানিয়েছে কলিযুগের মানুষরা, परंतु इसका अर्थ वह नहीं जानते। এত সুন্দর গানের আসল মিনিংটা কি
एटा तारा जाने ना। यह तुम जानते हो, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान के पॉइंट्स याद न होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं। বলছে জ্ঞানের পয়েন্টস ভুলে যাওয়ার কারণেই আমরা ভালো ভালো জ্ঞান ভালো ভালো পয়েন্ট কি করে মানুষকে বোঝাবো সেটা ঠিক সময়তে মনে আসে না। तो यह मुख्य है, इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी है ना, यह फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। বলছেন ভক্তি মার্গে পুরুষোত্তম মাস পালন হয়, কেউ বৈশাখ মাসে করে, কেউ কার্তিক মাসকে পুরুষোত্তম মাস বলে। তো বাবা বলছে संगम যুগেরই এটা यादगार। यह संगम का भी एक त्यौहार है। यह त्यौहार सबसे ऊंच है। तुम जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष, ऊंच ते ऊंच साहूकार से साहूकार नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। बाबा বলছেন উঁচু থেকে উঁচু साहूकार থেকে साहूकार বলা হবে लक्ष्मी नारायण के। शास्त्रों में दिखाते हैं बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बाबा বলছেন যে শাস্ত্রে তো দেখিয়ে দিয়েছে যে বড় প্রলয় হলো, আর তারপরে একটা পিপলের পাতায় ভাসতে ভাসতে শ্রীকৃষ্ণ এলো। अभी तुम क्या कहेंगे, नंबर 1 है यह श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं। दिखाते हैं अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ यह है उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण। तो बाबा বলছেন যে দেখিয়েছে যে সমুদ্রের মাঝখানে অসৎ পাতাতে কৃষ্ণ আঙ্গুঠা চুষতে চুষতে এলো। তো বাবা বলছেন বাস্তবে জলের সাগর না, জ্ঞান সাগরের প্রথম রচনা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, মানে প্রথম পাতা, অর্থাৎ হচ্ছে কল্পবৃক্ষের প্রথম পাতা, সত্যযুগে রাজকুমার রূপে আসছেন। तो ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उनमें नंबर 1 पुरुषोत्तम यह श्री कृष्ण है, और यह है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं। प्रलय भी होती नहीं। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है। বলছেন নতুন নতুন বাচ্চারা আসলে তাদের জন্য পুরনো পয়েন্ট রিপিট করতে হয়। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, यह 4 युग तो हैं, 5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं ना, तो वह है ही परम आत्मा परमात्मा। फिर पुरुषों में उत्तम है यह लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया, यह तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चों को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। বলছেন पुरुषार्थ कोनो बड़ो व्यापार ना, खूब सहज। सीखने वाली भी है अबलाएं कुब्जाएं। तो जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या? प्राप्ति तो कुछ नहीं है, झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना। বাবা বলছেন আহমেদাবাদে একজন সাধু ছিলেন, তো উনি বলতেন যে আমি কিছু খাই না। তো বাবা বলছে যে না খেয়ে কেউ থাকতে পারে? তো ঠিক আছে, যদি তুমি সারা জীবন কিছু খাওনি তাহলে প্রাপ্তিটা কি হলো?
বাবা বলছে যে খেতে তো সবাইকে হয়, না খেলে এর দেহটা চলবে কি করে। তো বাবা উদাহরণ দিচ্ছেন যে একটা বৃক্ষকেও খেতে হয়, মাটি, সার এবং সূর্যের রোদ, তো এগুলো তার আহার আছে। तो खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। ऐसे बहुत हैं जो आग से पानी से चले जाते हैं, इनसे भला फायदा क्या है। तो बाबा बोलছেন कि যেমন একটা বৃক্ষ সে মাটি থেকে সার নিয়ে নেয়, তো সেরকম বাবা বলছেন যে কিছু কিছু লোকেরা আছে যারা বিভিন্ন তন্ত্র মন্ত্রের সাধনা করে তারা শুধু হাওয়া দ্বারাই বেঁচে থাকে, হাওয়া খেয়ে বা জল খেয়ে। তো এরকম হয়, কেউ আগুনে চলতে পারে, কেউ জলে চলতে পারে। তো বাবা বলছে এসব কিছুক্ষণের জন্যে একটা সিদ্ধি, কিন্তু আত্মার এটাতে কোনো কল্যাণ হয় না। इनसे भला फायदा क्या है। तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। बाप कहते बच्चे ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। बाबा बोलছেন ड्रामा अनुसार আমি তোমাকে গুহ্য কথা শোনাচ্ছি। तो जैसे बाप ने समझाया है, शिव और शंकर को मिलाया क्यों है। शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है। शिव का ब्रह्मा का विष्णु का पार्ट है, ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंड पार्ट है। बाबा बोलছেন শঙ্করের এই সৃষ্টিতে কোনো পার্ট নেই, তাহলে শিব আর শঙ্করকে কেন এক মিলিয়ে দিয়েছে। বাবা বলছেন ব্রহ্মার পার্ট আছে বা বিষ্ণুর পার্ট আছে। ব্রহ্মারও 84 জন্ম, তো ব্রহ্মাই যখন আবার বিষ্ণু হচ্ছে তো বিষ্ণুরও 84 জন্ম। তাই বাবা বলছেন ब्रह्मा और विष्णुर ऑलराउंड पार्ट আছে। शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है, जो आकर ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। বলছে বাচ্চাদেরকে আমি সম্পত্তি দিয়ে, বর্ষা দিয়ে, শতযুগের মালিক বানিয়ে আমি তখন ওয়ানপ্রস্থে চলে যাচ্ছি, মানে একদম বাবা वाणी থেকে ডিট্যাচ হয়ে যাচ্ছেন, ডেড সাইলেন্সে চলে যাচ্ছেন বাবা পরমধামে। तो वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी हैं। বাবা বলছেন এখন ভারতবর্ষের একটা আগে সংস্কৃতি ছিল যে বাচ্চারা বড় হলে তাদেরকে সব সম্পত্তির মালিকানা করে মা বাবারা গুরু করে বানপ্রস্থে চলে যেত। তো বাবা বলছেন যে ওই রকম গুরু করে বানপ্রস্থ আশ্রমে যাওয়ার কোনো লাভ নেই। কেন? মোক্ষ তো কেউ পাবেও না, আর পরমধাম বাড়ি ফিরেও যেতে পারবে না যতক্ষণ শিব বাবা না আসছেন। परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी है ना। विकार से जन्म तो सबका होता है। यह लक्ष्मी नारायण निर्विकारी हैं, उन्हों का विकार से जन्म नहीं होता, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। बाबा बोलছেন যে লক্ষ্মী নারায়ণের জন্ম বিকার থেকে হয় না, এই জন্য এদেরকে শ্রেষ্ঠাচারী বলা হয়। कुमारियाँ भी निर्विकारी हैं, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाप ने समझाया है कि यहाँ शंकर का कोई पार्ट नहीं है। বলছেন যে শঙ্করের কোনো পার্টই নেই। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। বলছেন যারা বড় বড় ফিলোসফার হয় তারা খুব বড় বড় टाइटल पाए। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं। बनारस के कॉलेज से पास कर टाइटल ले आते हैं। বলছেন বেনারসে যে একটা বড় কলেজ আছে সেখান থেকে পাস হয়ে টাইটেল নিয়ে আসে, তাদেরকে বলা হয় শ্রী শ্রী 108 টাইটেল। तो
तो बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो। बाबा बोलছেন যে একটা ভাই ছিলেন গুপ্তা ভাই, তো বাবা ওনাকে বেনারস ইউনিভার্সিটিতে পাঠিয়েছিলেন যে তাদেরকে বোঝাও যে এই টাইটেল তো একমাত্র শিব বাবার, উনি শ্রী শ্রী 108 জগৎগুরু। তো এই টাইটেলটা মানুষ নিজের উপরে কি করে নিচ্ছে। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला ही 108 की होती है। 8 रतन गाए जाते हैं, वह पास विथ ऑनर होते हैं। বলছেন যারা 108 तारा पास विथ ऑनर होच्छेन, इसलिए उनको जपते हैं। फिर उनसे कम 108 की पूजा होती है। यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते हैं। বলছেন যজ্ঞ যখন রচনা হয় তখন কেউ কেউ 1000 শালিগ্রাম মানে नारायण शिला बनाए। कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख भी बनाते हैं। मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। क्यों 1000 नारायण शिला बनाए, क्यों 10,000, क्यों 50,000, क्यों लक्षों बनाए। तो বলছে মাটির বানিয়ে যজ্ঞ রচনা করছে। तो जैसा जैसा सेठ अच्छे ते अच्छा बड़ा सेठ होगा तो लाख बनवाएंगे। तो बाप ने समझाया है माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला बनाते हैं। यह तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। यह नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है। बाबा बोलছেন যে বাবার পুজো হচ্ছে তো বাচ্চাদেরও পুজো হওয়া দরকার। কেন? যে বাচ্চারাই বাবার সঙ্গে এখন বিশ্ব পরিবর্তনের কাজে মদতগার। তো বাবা বলছেন এই জন্যে যেখানে যেখানে যজ্ঞ হয় সেখানে নারায়ণ শিলা রূপে তোমাদের আত্মার পুজো হয়। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना, परंतु मददगार सब नहीं होते। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंच बनते हो, पूजन लायक बनते हो। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो यह बातें समझाए। इसलिए कह देते ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाबा বলছেন যে কারো শক্তি নেই যে তারা ঈশ্বরের অন্ত তোমাকে দিতে পারে। तो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, तो जरूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की तो बात होती नहीं। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वह फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। यह तो निश्चय है। निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाप की याद यह है पढ़ाई का तंत्र। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। इसमें ही माया के विघ्न आते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते हैं, शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश होता है। यह कहना भी ठीक नहीं है। बाप कहते हैं न विनाश मैं कराता हूँ न वह करते हैं, यह रॉन्ग है। देवताएं थोड़े ही पाप करेंगे। बाबा বলছেন যে ভক্তি মার্গে একটা গল্প আছে যে মহাদেব শঙ্করের যখন তৃতীয় নয়ন খোলে তখন পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায়। তো বাবা বলছেন যে পরমাত্মার উপরে বা কোনো দেবতার উপরে এরকম কলঙ্ক লাগানো উচিত নয়। কেন? ভগবান বা কোনো দেবতা এরকম পাপ কাজ করাবে না, কোনো ডাইরেক্ট কিছু ধ্বংস করবে বা বিনাশ করাবে এটা করে না। তো বাবা বলছেন না আমি বিনাশ করাচ্ছি না শঙ্কর कराए। तो अब शिव बाबा बैठ यह बातें समझाते हैं।
आत्मा का यह शरीर है रथ, हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। तो बाप कहते मैं इनका लोन लेता हूँ, इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। বলছেন ব্রহ্মার শরীরে আমি এসে প্রবেশ করি, এটাই আমার দিব্য অলৌকিক জন্ম। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, जानते हो अभी हम घर जाते हैं, फिर स्वर्ग में आएंगे। तो बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मुख से कुछ निकलता नहीं है, परंतु ऐसा तो होता नहीं, मुख तो जरूर चलता ही है। खाना खाते हो तो मुख चलता है ना, वाणी न निकले यह तो हो ही नहीं सकता। অনেকেরা বাবাকে বলে না, বাবা আমরা বেশি পড়াশোনা করিনি, তো আমরা কি করে তোমার জ্ঞানকে ভালো করে বুঝে তারপরে অন্যকে বোঝাবো, আমাদের মুখ চলেই না, বাণী চলেই না। তো বাবা বলছে যে যখন খাওয়া দাওয়া করো তখন মুখ চলে কি না? তো সারাদিনে কি তোমরা মুখ থেকে কোনো কথা বলো না? তো কথা যখন বলতে জানো তাহলে বাবার জ্ঞান শোনাতে পারো না কেন? बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है, कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं कि उनको याद करो। বলছে অনেকেরা কথা বলে না, মৌন থাকে, মৌন অবস্থায় বলে দেয় যে ভগবানকে উপরওয়ালাকে স্মরণ করো। তো তোমরাও মৌন থেকে বাবার পরিচয় দিয়ে দাও, বাবাকে স্মরণ করা এই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দাও। दुख हरता सुख करता वह एक ही दाता है, भक्ति मार्ग में भी दाता है, तो इस समय में भी दाता है। फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति, बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। पाठ नूंधा हुआ है जो एक्ट में आता है, अभी हमारा पाठ है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। तो बाप रचयिता है स्वर्ग का, बाप नरक थोड़े ही रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता है। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। বলছেন যে পুরনো দুনিয়াকে কেউ রচনা করে নাকি, বাড়ি সবসময় নতুন বানানো হয়। তো বাবা ব্রহ্মা বাবা দ্বারা নতুন দুনিয়া রচনা করছেন। इनको पाठ मिला हुआ है, यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा की संतान, फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए, एडाप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है लक्ष्मी नारायण बनना। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उन्हों के जो भी कैरेक्टर्स हैं सब आसुरी। বলছেন যে আজকালকার দুনিয়ার মানুষের যত कैरेक्टर सब आसुरी कैरेक्टर, आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारी विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है, और कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है, जिसको ट्रूथ कहते हैं। बाबा बोलছেন রাইট আর রংকে যে বোঝাবে সে একজনই রাইটিয়াস, যাকে ट्रूथ बोला হয়। तो बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को तुम बच्चे जानते हो, आदि से लेकर अंत तक पाठ बजाने नंबरवार आते हो। यह खेल चलता ही रहता है।
ड्रामा शूट होता जाता है। यह एवर न्यू है, यह ड्रामा कभी पुराना नहीं होता। बाबा বলছেন এই ড্রামা কখনো পুরনো হয় না। কেন? আমরা যখনই নাটক করছি তো আমরা তো পুরো স্ক্রিপ্ট জানতে পারছি না যে অতীতে কি করে আসলাম বা ভবিষ্যতে কি হতে চলেছে। তো বাবা বলছেন যে ড্রামা সবসময় তোমাদেরকে নবীন মনে হচ্ছে, নতুন মনে হচ্ছে। तो यह बेहद का विनाशी ड्रामा है। इनमें सब अविनाशी पाठधारी हैं। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते हैं। वह सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नज़दीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी। साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पाठ पूरा हुआ। ड्रामा को भी अब रिपीट करना है। फिर नए सिरे पाठ बजाएंगे जो कल्प पहले बजाया है। तो इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए, पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है। বলছেন ড্রামাতে একটুও পরিবর্তন হবে না, একটুও চেঞ্জ হবে না, কিন্তু তোমাদেরকে তো উঁচু পুরুষার্থ করতেই হবে উঁচু পদ পাওয়ার জন্যে। তো এখানে কোনো মনে যেন প্রশ্ন না আসে, কনফিউজন না আসে। ड्रामा को जो कराना होगा वह कराएगा। বলছে ড্রামা যা করাতে হবে বাবা ড্রামা করাবে। এটা বলাটাও রং, यह कहना भी रॉन्ग है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। এটা না যে আমার জল তেষ্টা পেয়েছে তো জল যদি আমি ড্রামাতে জল খেয়ে থাকি তাহলে অটোমেটিক জলের গ্লাস আমার মুখে চলে যাবে। তো বলছে জলের ব্যবস্থা করে গ্লাসটা হাতে নিয়ে মুখে তো দিতে হবে, তবে তো জল যাবে। তো ওইটুকু তো পুরুষার্থ করতে হবে। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার ধারণার মুখ্য সার 1 নম্বর পয়েंट। पढ़ाई का तंत बुद्धि में रख, याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। বাবা বলছেন পড়ার সার বুদ্ধিতে রেখে বাবার यादेर यात्राয় कर्मातीत अवस्था के পেতে হবে। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। হচ্ছে ऊंच पूजनीय হওয়ার জন্য বাবার পুরো পুরো मददगार होते হবে। 2 नंबर सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन, जीवन बंध से छूटना है। হচ্ছে সত্য বাবা দ্বারা তোমরা রাইট রঙের যা বুদ্ধি পেয়েছো সেটা দ্বারা রাইটিয়াস হতে হবে আর কর্মবন্ধন থেকে ছুটতে হবে। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। আজকের वरदान संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रालब्धि भव। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रालब्धि भव। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्ति होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रालब्धि जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रालब्ध में पाओ। संगम युगेर विशेषता जे एकटा पा पुरुषार्थेर उठाओ और 1000 कदम प्रालब्धेर पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रालब्धि हैं।
इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। भावछिन प्रारब्ध के देखे सहज ही चढ़ती कलार अनुभव करबे। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाओ तो घुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। जाके पावर छिलो ताके पेये गेलाम, ए गीत गाओ বা সেই গান করো তাহলে নানান রকম ঘুটকা বা ঝুটকা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। আজকের স্লোগান, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। বলছেন ব্রাহ্মণদের শ্বাস হচ্ছে সাহস, তো এই সাহস দ্বারা কঠিন থেকে কঠিন কার্য সহজ হয়ে যায়। আজকের মুরলিতে শেষে मम्मार একটা ছোট্ট মুরলি আছে। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य मुक्ति और मोक्ष, मुक्ति और मोक्ष की तार उपरे मम्मार छोट्ट एक क्लास। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में न आना इसको ही ऊंच पद समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं। बाबा मम्मा बोलছেন যে মানুষ ভাবে যে জন্ম মৃত্যু থেকে সদাকালের জন্য মুক্তি পেয়ে যাওয়া এটাকেই মোক্ষ বলা হয় বা মুক্তি বলা হয়, এটাকেই তারা উঁচু পদ ভাবে, এটাকেই प्रारब्ध भावे। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग हैं उन्हों को जीवन मुक्त कहते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में से कोई बिरला ही समझते हैं। मामा बोलছেন যে মানুষ ভাবে যে জীবন মুক্তি মানা যেমন কোনো সন্ন্যাসী বা ধর্মাত্মা বা মহান পুরুষ যারা সমাজের জন্য ভালো কাজ করে তাদেরকে জীবন মুক্ত বলে। মামা বলছেন যে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া এটা কোটির মধ্যে কেউ বিরলই পায়। अब यह है उन्हों की अपनी मत, एगुलो होच्छे এটা তাদের मत। लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकेंगे। मामा बोलছেন कि যতক্ষণ আমরা পুরো বিকারী কর্মবন্ধন মানে দাপর যুগ থেকে যা কিছু পাপ কর্ম করেছি সেই কর্মবন্ধন থেকে যতক্ষণ মুক্ত না হব ততক্ষণ আমরা आदि मध्य अंत दुख থেকে मुक्ति পেতে পারবো না। तो इससे छूटना यह भी एक स्टेज है। तो এটা থেকে মুক্তি পাওয়া এটা একটা स्टेज। तो भी पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करें तब ही उस स्टेज पर पहुंच सकें। যখন এই স্টেজকে আমরা ধারণ করব বা ঈশ্বরীয় নলেজকে যখন আমরা ধারণ করব তবেই আমরা সেই স্থিতি পর্যন্ত পৌঁছতে পারব। तो उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति देते वह हैं। मामा बोलছেন যে সেই স্থিতি পর্যন্ত কে তোমাকে নিয়ে যাবে, সে হচ্ছে একমাত্র পরমাত্মা। তিনি মুক্তি জীবন মুক্তি সবাইকে দিচ্ছেন। वो भी एक ही समय आए सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देता है। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते। मामा बोलছেন भगवान कोनो बार बार आसेन ना, और ना ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। और ना এটা ভাবা উচিত যে ভগবানই 24 अवतार धारण करें, এটাও ভুল। अच्छा, ओम शांति।